اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلی اور بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے دہلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی کی شاہی جامع مسجد سے ایک مضبوط آواز بلند ہوئی ہے فلسطینیوں کو لے کر۔ جی ہاں، شاہی امام کا بڑا بیان آیا ہے۔ گزشتہ کل جمعہ میں انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ سنو، اللہ سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں، فلسطینیوں کا حق انہیں مل کر رہے گا۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف شاہی جامع مسجد نئی دہلی سے مضبوط آواز اٹھی۔ شاہی امام سید احمد بخاری نے نماز جمعہ سے پہلے مغرور مغربی قوتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ خود کو سپر پاور تصور کرنے والی طاقتیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کریم سے شاہی امام نے اپنے خطاب کا آغاز کیا اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالی، اور پھر اسرائیل کی جاری حیوانیت کو بے نقاب کیا۔ شاہی امام نے کہا کہ فلسطین میں جس بربرتا کا اسرائیلی ریاست اور اس کی قیادت کے ذریعے برملا اظہار ہو رہا ہے، اس سے انسانیت شرمسار ہے، جس کا ثبوت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 153 ملکوں کا اس قرارداد کی حمایت ہے جو اس بربریت کے خلاف اور فوری سیز فائر کرنے اور غزہ کے متاثرین کو انسانی امداد فراہم کرنے سے متعلق تھا۔ وطن عزیز ہندوستان اور اس کی قیادت کا تاریخی اور موجودہ پس منظر ایک آزاد خود مختار ریاست کے قیام کی حمایت پر مبنی رہا ہے۔ خیر، دہلی سے آواز اٹھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ مضبوط آواز میں نے کہا، لیکن یہ 3 مہینے کے بعد اٹھی ہے۔ الحمدللہ پہلے ہی دن سے ہم نے اپنی عیدگاہ شاہی مسجد سے اس آواز کو بلند کیا تھا۔ خیر، دیر آید درست آید۔ ناظرین، آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مدراس ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مسلمانوں کو تعدد ازدواج کا حق حاصل ہے۔
यानी मुसलमान एक से ज्यादा बीवियां जो उसकी शरीयत ने उसे हुक्म दिया है वो कर सकता है, लेकिन उन्हें तमाम बीवियों के साथ यकसा सलूक करना होगा। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो ये जुल्म की तरह होगा। बीवी का सही ख्याल रखना शौहर का फर्ज है। इस मामले में हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को बहाल कर दिया जिसमें जुल्म की बुनियाद पर पहली बीवी के हक में तलाक का हुक्मनामा मंजूर किया गया था। हाई कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया कि शौहर और उसके अहले खाना ने इब्तदाई तौर पर पहली बीवी को हिरासा किया, हमल के दौरान भी उसका मुनासिब इलाज नहीं किया। इससे तंग आकर पहली बीवी ने ससुराल का घर छोड़ दिया। बाद में मुसलमान शख्स ने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी बीवी के साथ रहने लगा। खैर, हाई कोर्ट ने कहा कि मर्द ने अपनी पहली बीवी और दूसरी बीवी के साथ एक जैसा सलूक नहीं किया, जबकि इस्लामी कानून के तहत मर्द के लिए अपनी बीवियों के साथ यकसा सलूक करना फर्ज है। और हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को ताद्दुदे इज़्दिवाज का हक हासिल है। आइए बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि रियासत आसाम के जो वजीर आला है इंतहाई घटिया किस्म की बात करते हैं और हमेशा जात पात और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर ये बेवकूफ़ी करते हैं और ये समझते हैं कि इससे हिंदुत्व भगवा आतंकी टोला बहुत खुश होगा। खैर, खबर आ रही है कि जात पात के भेदभाव वाली पोस्ट पर वजीर आला आसाम को माफी मांगना पड़ी। ये ऐसे घटिया किस्म के जहन के लोगों को वजीर आला बनाने पर ही सोचना चाहिए। खैर, वजीर आला आसाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जात पात के भेदभाव वाले रिमार्क्स अपलोड करने के बाद उन्होंने माफी मांग ली कि उनकी टीम ने भगवत गीता के एक श्लोक का गलत तर्जुमा किया। शर्मा ने जुमेरात की रात एक्स और फेसबुक पोस्ट में कहा था कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर हर सुबह भगवत गीता का एक श्लोक अपलोड करते हैं। अब तक 668 श्लोक अपलोड कर चुके हैं। हाल ही में मेरी टीम ने एक श्लोक गलत तर्जुमे के साथ पोस्ट किया। गलती का पता चलते ही मैंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। अगर इस पोस्ट से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगहों पर राम मंदिर का भव्य ओपनिंग होने जा रहा है, इफ्तिताह होने जा रहा है। बाबरी मस्जिद की जगह पर आप जानते हैं कि राम मंदिर की तामीर हो रही है और हो चुकी है और 22 जनवरी को उसका इफ्तिताह होने वाला है। तो खबरें हैं कि सोनिया गांधी भी राम मंदिर के इफ्तिताह पर उस प्रोग्राम में जा सकती हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र कांग्रेस ने हिंदू जज्बात को ठेस न पहुंचाने का फैसला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के चंद और लीडरान के भी अयोध्या जाने का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी यही कार्ड खेल रही है। यानी अगर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के लीडरान नहीं पहुंचते हैं तो फिर ये 2024 में गलत प्रचार करके कांग्रेस को मुसलमान पार्टी साबित करके फिर अपना रोटी सेकेंगे। इसलिए कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि लोकसभा इलेक्शन के पेश नजर कांग्रेस हिंदू जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएगी और सोनिया गांधी राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर जा सकती हैं। आइए नाज़रीन, रियासत आसाम जो तकरीबन 7 महीनों से जल रहा है और 7 महीनों में 56 इंच के सीने वाले की हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम और फेल हो चुकी है। 7 महीने से आसाम जल रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि मरकजी हुकूमत यानी बीजेपी सरकार और इंतहा पसंद तंजीम, अब यहां आतंकवादी तंजीम नहीं कहा जाएगा क्योंकि मुसलमान नहीं है, जी हाँ, इंतहा पसंद लफ्ज कहा जा रहा है। इंतहा पसंद तंजीम, शिद्दत पसंद तंजीम, उल्फा और केंद्र सरकार यानी आतंकवादियों में और केंद्र सरकार में बातचीत हो गई है। इसलिए खबर आ रही है कि आसाम में अब अमन आएगा, शांति आएगी, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने इंतहा पसंदों से, शिद्दत पसंदों से, आतंकियों से मुफाहमत कर ली है और उनकी बातों को मान लिया है। यानी आप समझ सकते हैं इस खबर का मतलब क्या है। लेकिन हुकूमत इन इंतहा पसंदों को और इन आतंकियों को खत्म करने में नाकाम रही, इसलिए अब मुफाहमत और बातचीत हो रही है और अब अमित शाह पहुंच गए हैं और आसाम में अमन कायम होगा। अब अमित शाह के पहुंचने से अमन कायम होगा। रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना ने लोकसभा इंतखाबात के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए बिगुल बजा दिया है। मिशन 48 की
तैयारियां वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत में हो रही है और उनकी क़यादत में होने वाली शिव संकल्प अभियान का आगाज तूफानी दौरों से होगा। शिव सैनिकों से बड़े पैमाने पर श्री राम परम प्रतिष्ठा तकरीब मनाने की अपील की गई है। यानी इलेक्शन के मौके पर राम जी बड़े काम आते हैं। अब की बार तो लोकसभा इलेक्शन में राम मंदिर जो 30 सालों से काम आ रहा था अब ओपनिंग हो चुका है, तो वो और 5 साल काम आएगा, क्योंकि अब मुल्क के विकास की बात नहीं हो रही है, मुल्क से बेरोजगारी खत्म करने की बात नहीं हो रही है, बेरोजगार जवानों को नौकरियां दिलाने की बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद पर ही इलेक्शन चलेगा और बीजेपी राम मंदिर का पूरा पूरा सेहरा पहनने की कोशिश कर रही है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है जी हाँ कि हमारे लाडले प्यारे प्यारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा है। जी हाँ, अभी तो 2024 में अयोध्या और राम मंदिर ही काम आएगा, इसलिए मोदी जी आसाम का दौरा नहीं कर रहे हैं मगर अयोध्या का दौरा करेंगे, मणिपुर का दौरा नहीं करेंगे मगर अयोध्या का दौरा करेंगे, क्योंकि अब जो 2024 में रोटी खिलाएगा वो अयोध्या और राम मंदिर ही खिलाएगा। खैर, हालांकि ऐसे जा रहे हैं अयोध्या में जैसे ये मंदिर बना रहे हैं, जबकि इनका उसमें 5 पैसे का कोई कमाल नहीं है, लेकिन क्या करें, अंधभक्तों की भीड़ जो है इसका फायदा बीजेपी को पहुंचाएगी। तो मोदी जी अब अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। अयोध्या में सख्त सिक्योरिटी है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे से 15 किलोमीटर रोड शो नरेंद्र मोदी का निकाला जाएगा। वजीर आजम की आमद के हवाले से जिला इंतजामिया ने ड्रोन उड़ाकर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। वजीर आजम अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए की कई स्कीमों का ऐलान कर सकते हैं और इस दौरान मिस्टर मोदी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी ओपनिंग करेंगे। इसके बाद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसका भी ओपनिंग करेंगे। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। मुल्क की पत्रकारों की सबसे बड़ी संगठन वॉइस ऑफ मीडिया के संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष सहाफी पत्रकार संदीप जी काले, इनको रूपाली दूधगांव कर कौमी अदबी अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया गया है। मशहूर मारूफ अदीब, राइटर, सहाफी, ऑर्गेनाइजर संदीप काले मुंबई को इमसाल रूपाली दूधगांव कर कौमी अदबी अवार्ड का ऐलान किया गया है। इस तरह की मालूमात शिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीधर बॉम्बे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। मैं आपको बता दूं कि सहाफी संदीप काले एक मशहूर मुसन्निफ हैं, राइटर है। वो 15 अगस्त 1982 को नांदेड़ जिला के पाटनूर गांव में पैदा हुए। संदीप काले के वालिद का नाम रामराव काले है, जो कि एक किसान हैं। उनकी अम्मी जान, उनकी वालिदा कमलबाई उर्फ मुक्ताबाई एक हाउसवाइफ, घरेलू खातून है। संदीप काले जिन्होंने कई टीवी प्रोग्राम्स के एडिटर के तौर पर काम किया है, फिलहाल वो रियासत के एक मारूफ रोजनामे में बतौर एडिटर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। संदीप काले की अब तक 67 बुक्स, किताबें मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में शाये हो चुकी है। मकाम पोस्ट आई, टू वेल्थ फेल, ऑल इज वेल, ऐसी कई किताबें हैं जिन्होंने इशाअत के, पब्लिशिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये चारों किताबें तमाम जबानों में शाये हो चुकी है और कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, निसाब में शामिल हैं। संदीप काले ने तहरीर के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड और लिम्का बुक रिकॉर्ड में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। साफी संदीप काले को अदब, हुकूमत,
समाजी तंजीमों और सहाफ़ियों की अंजुमन की तरफ से अब तक 380 अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वो अब तक 26 मुल्कों का मुतालियाती दौरा कर चुके हैं। इसी तरह उन्होंने सहाफत के कई कॉलेजों में बतौर प्रोफेसर भी खिदमात अंजाम दी है। खैर, संदीप काले साहब की वॉइस ऑफ मीडिया संगठन की टीम का एक हिस्सा मैं भी हूं और उन्होंने मुझे उर्दू डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उर्दू सेल का। हम संदीप जी काले को दिल के गहराइयों से रूपाली दूधगांवकर कौमी अदबी अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर हम वायरल न्यूज लाइव की जानिब से बधाई मुबारकबादियां पेश करते हैं। आइए नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि एक मजहब बेजार, ऐसे लोग मजहब बेदारी होते हैं, नास्तिक टाइप के होते हैं जिनको दीन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो ऐसी एक मजहब बेजार एक नौजवान लड़की है शबनम शेख, जो अपने 2 हिंदू साथियों के साथ, अब आप इससे समझ लीजिए कि शबनम शेख अपने 2 हिंदू साथियों के साथ राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होने के लिए मुंबई से पैदल रवाना हो चुकी है और अब ये अपने दोनों हिंदू साथियों के साथ मध्य प्रदेश के सेंधवा पहुंच चुकी है। रास्ते में जगह जगह बाकायदा शबनम शेख का जोरदार अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों की दिमागी हालत और मजहबी हालत क्या है। नाज़रीन, नए साल के मौके पर 10,000 से ज्यादा मुंबई में पुलिस एहलकारों को तैनात करने का फैसला हुकूमत ने किया है। मुंबई शहर में अमन व अमान को कायम रखने के लिए 22 डीसीपी, 45 एसीपी और यूं समझिए कि 2051 पुलिस अफसरान को गश्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेंसिटिव पैलेसेस पर हसास मकामात पर एसआरपीएफ और दीगर फोर्स मौजूद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट रहेगी। शहरियों से इमरजेंसी की सूरत में 100 नंबर डायल करने की अपील की गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि नया साल कितनी तबाही लेकर आएगा और 31st नाइट कितनी शराब को आम करेगी और कितने जिना, हरामकारी, बदकारी, रेप होंगे, बस ये खुदा ही जानता है। तो ऐसे नए साल को इस तरीके से अगर मनाया जाएगा और नए साल का इस तरीके से वेलकम किया जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये पढ़े लिखे जाहिलों की देन है। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम ऐलान, खुशखबरी वाला ऐलान मैं करने जा रहा हूं कि मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल की सरजमीन कोतोल में चौथा एक रोजा अजीम शान जलसे दस्तारबंदी और तालीमी सेमिनार, एक तालीमी इजलास, एक तालीमी पैगाम मुनक़िद होने जा रहा है। मदरसा कासमिया अशरफुल उलूम कोतोल, पोस्ट बिशनपुर, थाना हरिश्चंद्रपुर, जिला मालदा, मगरिबी बंगाल में यह शानदार प्रोग्राम 3 जनवरी बरोज बुध को होने जा रहा है, जिसमें मुल्क के मशहूर मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल मलिक साहब फारूकी, जामिया हमदर्द नगर नई दिल्ली, ऐसे ही मैं खुद यानी मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, सदर जमीयत उलमा जिला जलगांव, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर वॉइस ऑफ मीडिया और ऐसे ही मुकर्रिर शोला बया यासीन अली साहब जो बंगाली ज़बान में तकरीर करते हैं और भी बड़ी तादाद में उलमाए किराम और मशहूर मारूफ नात खा भी उस प्रोग्राम में शायर इस्लाम तारिक अनवर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। तो ये प्रोग्राम बड़ा शानदार पैमाने पर होने जा रहा है। मैं तमाम हजरात जो पोस्ट कोतोल के रहने वाले हैं, बिशनपुर, थाना हरिश्चंद्रपुर और जिला मालदा के आसपास के रहने वाले, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 3 जनवरी बरोज बुध को इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में आप तमाम हजरात शरीक रहें।